गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बटमना गांधरबल में आज सीनियर उस्ताद गुलाम नबी राथिर की सुबकदोशी पर स्कूल में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में तालिब इल्मों और असातिज़ा ने शिरकत की और मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले उस्ताद गुलाम नबी राथिर की कारकर्दगियों को काफ़ी सराहा। आपको बता दें कि गुलाम नबी राथिर ने 36 बरस कबल पेशे उस्तादी में कदम रखा और इल्म की शम्मा को जिला गांधरबल के मुख्तलिफ स्कूलों में रोशन किया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए उमर शौकत की ये खुसूसी रिपोर्ट। जो हुसैन आरिफ है उसके लिए एक तोहफा लाया है, वो भी यहाँ आए। ये भी मोहम्मद सुजुकी। सर प्लीज। उसके बाद है बशीर अहमद जहरवाल साहब। बहुत अच्छा आकाशी, यही है ना, तो यही है बशीर साहब की क्वालिटी, यही है। मैंने भी यहाँ थोड़ा सा गिफ्ट लाया तो मैं यहाँ इसको सर बेहतर होता कि अगर जान साहब उसको खोलते, लेकिन मुझे लगता है बेहतर है। सर आपकी थोड़ा यहाँ हम पिछले तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। कयामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, रात साहब, कयामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, न भूल पाएगा दिल तेरा अलविदा। Celebrate the retirement of our colleague Jian sir, who is teaching mathematics at +2 level and served the department near about 36 years, if I am not wrong. I can say one thing, that I learned a lot of things from him. I am filled with mixed emotions. On one side, I am very much sad. Why I am sad? As he is no longer to join us from tomorrow. We will really miss Zejian sir. And second thing is that I am happy as he is leaving the department with great dignity and honor. Respected principal, our dynamic personality, Mr. Ghulam Nabi Rathir Sahab, my dear colleagues and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With tearful eyes and heavy heart, I stand here on this dais to bid farewell to a person who remained a main pillar of this institution. اور دیگر معزز
سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ فہم دانائی و ہنر کا آسماں استاد ہے، فہم دانائی و ہنر کا آسماں استاد ہے، علم و حکمت کی یقیناً کہکشاں استاد ہے۔ غور کر نادان کہ تو بھی عزت استاد پر، غور کر نادان کہ تو بھی عزت استاد پر، جہل کی تاریکیوں میں ذوالفشاں استاد ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں غلام نبی راتر صاحب جو کہ ہمارے یہاں ابھی بھی موجودہ لیکچرر ہے ریاضی سبجیکٹ کے، آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو کہ اپنی مدرسی کے جو خدمات بطور لیکچرر یہاں پہ ابھی تک انجام دے رہے تھے، ان کے سبکدوشی کے اس موقع پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جن کی لگن اور جذبے نے طلبہ پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں۔ مزید اپنے خراج تحسین کو جاری رکھتے ہوئے میں ہلکا سا ان کے کریئر پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ راتر صاحب نے اپنی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے ہی آبائی گاؤں برہما سے قریباً 1970 عیسوی کے آس پاس انہوں نے شروع کیا، جہاں سے انہوں نے 1977 عیسوی میں میڈل پاس کیا تھا۔ 9th اور 10th ہائی اسکول تلملہ میں 1979 عیسوی میں انہوں نے کیا۔ 1982 عیسوی میں راتر صاحب نے گاندربل ہائر سیکنڈری سے 12th پاس کیا تھا، اور 1985 عیسوی میں انہوں نے اسلامک کالج سے BSc کیا تھا، نان میڈیکل سبجیکٹ تھا ان کا، اور ان کی جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہے محکمہ تعلیم میں وہ 1988 عیسوی میں ہوئی۔ بعد میں 1999 عیسوی میں وہ بطور انسینس کینڈیڈیٹ MSc کرنے کے لیے چلے گئے کشمیر یونیورسٹی، جہاں سے انہوں نے میتھمیٹکس میں MSc کوالیفائی کیا تھا، اور ان کی جو فرسٹ پوسٹنگ ہے وہ 1988 عیسوی میں گھنیول میں ہوئی تھی۔ بعد میں وہ 1979 عیسوی سے 99 عیسوی سے 2004 عیسوی تک واقعہ میں انہوں نے اپنے خدمات انجام دیے، اور 2004 میں اس کو پروموشن ملی، مشکو دراس میں ان کو بھیجا گیا بطور ماسٹر، جہاں سے لوٹ کے پھر 2006 سے 2012 وہاں انہوں نے تقریباً 2 سال دیے تھے دراس کرگل میں۔ 2006 سے 12 تک پھر سے واقعہ میں رہی، 12-13 میں 1 سال برہما میں دیا ہے بوائز ہائی اسکول میں قرآن۔ 2015-16 میں پھر سے واپس وہ واقعہ آئے کام کرنے کے لیے، اور 2022 سے 24 تک یہاں پہ ہے۔ 2008 سے 11 تک انہوں نے بطور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر میتھمیٹکس ڈائٹ میں جو فرائض انجام دیے، اور اس دوران وہ SCRT میں بھی جو اس وقت شاید SIE کہلاتا تھا، اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے مختلف جو کردار ہیں وہ ادا کیے ہیں، تقریباً کم و بیش 36 برس کی سروس ان کی رہی ہے، اور اپنے علاقے میں میتھمیٹکس کے ایک مشہور استاد مانے جاتے تھے۔ اپنے پورے کریئر کے دوران آپ نے نہ صرف علم فراہم کیا، بلکہ اپنے طلبہ میں میتھمیٹکس کے لیے محبت بھی پیدا کی۔ آپ کے صبر، وضاحت اور غیر متزلزل حمایت نے میتھمیٹکس کی پیچیدگیوں کے ذریعے بے شمار طلبہ کی رہنمائی فرمائی، اور اس مضمون کو قابل رسائی اور لطف اندوز بنایا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہنا لازمی ہے کہ تقریباً 3 دہائیاں قبل جو میتھمیٹکس ہمارا جو مضمون ہے، اس کے اساتذہ کم ہی دستیاب ہوا کرتے تھے، لہذا راتر صاحب کے دروازے ہمیشہ بچوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ تعلیم سے آپ کی وابستگی اور پڑھانے اور سیکھنے کے مثبت ماحول کو فروغ دینے میں بے شمار طلبہ کو متاثر کیا ہے، اور ان کی رہنمائی کی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ رہے ہیں، جو ان کی تعلیمی راہوں پر اور خواہشات کو تشکیل دینے میں مشعل راہ ثابت ہوئی ہے۔ چونکہ اب آپ زندگی کے نئے مرحلے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، ہم آپ کی برسوں کی خدمت، لگن اور انگنت طلباء کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی تعلیمی وراثت قوم کے حوصلہ افزائی کرتی رہے گی، اور ہم آپ کے علم و اقتدار کو آگے بڑھانے میں
पेश रहेंगे और आपके रिटायरमेंट पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि ये नया बाब आपके लिए खुशी, तकमील और नई उफ़ुक़ को दरियाफ्त करने का मौका लाए। रहबर के ऐमा से हुआ तालीम का सौदा मुझे, रहबर के ऐमा से हुआ तालीम का सौदा मुझे, वाजिब है सहराए गरद पर तामील फरमान खज़र। उम्मीद है कि रातर साहब का जो ये सफ़र है रिटायरमेंट का, जैसा कि आरिफ साहब ने भी कहा, ये रिटायर नहीं है, ये सुबकदोश हुए हैं सर्विसेज से, लेकिन चूँकि रातर साहब एक मजहबी स्कॉलर भी है, उन्होंने बहुत खिदमत की है दीन की। उम्मीद है कि ये अपनी खिदमत को जारी रसाई रखेंगे और हमें शायद इसकी ज़रूरत और भी ज़िंदगी के मराहिल में पड़ सकती है, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को सेहत बख्शे, सलामत रखे और हमारी रहबरी करती रहे। This is a great celebration. Those who will attain this superannuation day. Definitely, अगर हम और आतर साहब की जैसे आप सब लोगों ने इनकी पूरी education या how he got the job and then where he was posted, इस सब को देख लें और उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए इनकी कितनी स्ट्रगल रही होगी, किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें अचीव की है, क्योंकि उन दिनों आसान नहीं था। जैसे आजकल हम चाहे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत इजी है। उन दिनों का कोई भी बीएससी ग्रेजुएट 80s की बात है, ये इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, रियरली हुआ करते थे। मैंने अपनी जब 12th की रिज़ल्ट देखी, देयर वर जस्ट 28 डिस्टिंक्शंस पूरे गैजेट में थे, यानी डिस्टिंक्शन उसने ये हुई और शासन सारी डिस्टिंक्शन। सो ऐसे इंसान जिन्होंने बिल्कुल एकदम विदाउट एनी हेल्प, पेरेंटल हेल्प उतना होता ही नहीं था, स्थिति पढ़मत लिखमत आसकी पत तथ इलाकस मज अगर वो पढ़मत लिखमत कत्या सठा कम तो अत दौरान कुछ इलाक मज साइंस ग्रेजुएट नेरन इट सेल्फ वाज एन अचीवमेंट। तो तब इन्होंने ऑप्ट किया इस जॉब को, इस प्रोफेशन को, और इन्होंने सर्विसेज बहुत सारी जगहों पर दी, गनीवन में भी दी है, कारगिल में भी गए हैं। और अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे एक इंसान को एक लाइफ स्पैन मिलता है, एंड दिस लाइफ स्पैन इज बाइफरकेटेड इन स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे असाइनमेंट्स होते हैं। अगर हम बचपन से ही लेंगे, एक बच्चे का एक असाइनमेंट होता है बचपन, वो भी उसको एक असाइनमेंट होता है, तो उसको जब क्रॉस करता है कामयाबी के साथ, दैट इज एन अचीवमेंट। देन ही गोज फॉर द एजुकेशन, अब प्राइमरी, मिडिल, हायर एंड सो ऑन। उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक और अचीवमेंट, ये अचीवमेंट्स तो होते ही रहते हैं दुनिया में, और इसी के साथ हमारी दुनियाई ज़िंदगी गुजर जाती है। अब एक इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर उसने पूरी अपने लाइफ कैरियर में ये सारे अचीवमेंट्स भी पाए और उसके साथ साथ अपने अल्लाह ताला का अचीवमेंट भी साथ साथ मेंटेन किया, तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी साहब राथर साहब को मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, जस्ट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स से मैं गुलाम नबी साहब को खुश मिजाज, बहुत खुशखुलक इंसान, जेंटल है, और डेफिनेटली अपनी दीन पर भी अच्छी तरह से हमसे ज़्यादा बेहतर चलते हैं, और इसके साथ साथ इसको यानी दीनी और दुनियाई दोनों चीज़ों में एक कामयाबी मिली है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये आज एक असाइनमेंट से फारिग हो गए, इसके बाद अल्लाह ताला ने इसके नसीब में और सारे असाइनमेंट्स, इनको पता होगा क्या क्या है, आगे जाके बहुत सारे काम करते हैं। और इसके जो आप लोगों ने भी बोला कि टीचर, डेफिनेटली टीचर हमेशा टीचर ही रहता है, वो आखिरी दम तक टीचर ही रहता है। उसका वो एटीट्यूड, टेम्परामेंट, इसके मतलब टीचर ना शरीर बिल्कुल शुरू हमेशा रोज़ा, और वो आखिर तक वैसा ही रहता। आप देखो बाकी डिपार्टमेंट्स के जब उनकी जो इस पर एनिवेशन होती है, दे फील समथिंग डिफरेंट। तो यह टीचर यह एंजॉय करान क्या लाइफ
हमेशा एडजस्ट करना, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा खुशी का मुकाम है गुलाम नबी साहब की लाइफ में, जो आज का दिन है। और आज इसे बिल्कुल भरपूर एहसास होगा कि मैंने दोनों चीज़ें पाई। और मैं यही लास्ट पे कहूँ, अल्लाह ताला से हम दुआ सब करेंगे कि इनकी आगे की ज़िंदगी स्मूथ रहे और सेहतमंद रहे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज के साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशंस, ये डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब अगर इस मामले में अल्लाह ताला की इनायत हो, इन पर इनकी सेहत अच्छी रहे, तो ये आगे के काम भी बहुत खुश असलगी से करें। बाकी डेफिनेटली किसी के साथ भी 2 महीने का, 1 महीने का, 1 साल का अटैचमेंट, या बच्चों के साथ हमारे क्लास में जब ये दूसरे क्लास में या दूसरे स्कूल में जाते हैं, डेफिनेटली वी फील, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी लिव इन अ सोसाइटी, अटैचमेंट होता है। मेरे 2 टीचर निकल गए, आई ऑलवेज फील वेरी बैड। मतलब बस एक्सपेक्ट वन तक वो तम गिन मज मैं वो आरिफ साहब नमाज पढ़ान ब्रो कून कुछ तरीके पथ कुन वो बह कर अमिस खान पाठ। ये हो ही नहीं सकता है कि गुलाम नबी साहब यहाँ पर अगर मेरे साथ 8-10 ही महीने रहे तो ठीक है, तकरार भी करते हैं, वो बाकी चीज़ें भी है, लेकिन इसके पीछे प्यार मोहब्बत ही होता है। ऐसी फैमिली घरस मज अटैचमेंट आसान फैमिली मेम्बर, इथे कन पन्न कुलीगन सत्यान घरस मज तिथे कन बिहेव करान ये बिहेव करान। बस तेज़र तरान पे दस्ती अनान, तो क्योंकि मुझे पता है हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। वी हैव टू रन ए सिस्टम ईयर। तो सही बात है कि बहुत देर तक इसकी फील महसूस हो जाएगी। कभी कभी हमको धोखा हो जाएगा, जैसे गुलाम नबी साहब चल रहे। आई विश यू गुड लक इन फ्यूचर, और आप सब लोगों की भी दुआ इसके साथ है। हमारा काम है, हम एक टीचर हैं ना, हाँ, अगर मैं अब चाहूँ मैं पढ़ा सकूँगा, ये बस यही वक्त होता है करने का। जो इस वक्त आप टीचर हैं, आप कुछ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ टीचरों को देखा कि वो अपने काम से मगन है, ये नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन कुछ टीचर तो मैंने देखे हैं तो वो बच्चों को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने के लिए उस दिए से क्या जो किसी को रोशनी न दे। तुम्हारे यहाँ पर जितना भी आपके पास इल्म है दूसरों तक पहुँचा, जितना भी इल्म है दूसरों, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जितना मैथमेटिक्स का मुझे मैंने देखा, मैंने शायद बहुत सारे टीचर आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने मैंने ट्रेनिंग दी उधर, जो 2008 शायद 2009 में जितने भी लग गए, तो मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी उधर। तो मैंने देखा कि मेरे सब्जेक्ट में मैंने कोई ऐसा टीचर नहीं देखा जो फुल्ली वाक़िफ़ हो, जो मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं वो नहीं है। इसलिए जो जितने भी बच्चे हैं वो इस सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, आपके लिए वक्त है कि जो ज़िंदगी मिले, जितना भी टाइम मिले, कोशिश करो कि जिस प्राइमरी जॉब के लिए हमें भेजा गया है तो वो हमसे हालांकि आजकल तो काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाना नहीं, काम ही काम है स्कूल में, लेकिन पढ़ाना नहीं, न टीचर न बच्चों को वो शौक है न कुछ। लेकिन फिर भी यहाँ 9th-10th के कुछ क्लासेस ठीक ठाक चलते हैं, 9th-10th के क्लासेस, और 11th-12th के भी वो क्लासेस जो बच्चे आते हैं, और मैं अपने टीचरों को देखता हूँ कि वो जान फिशानी से उनके पास जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो बाकी आप कहेंगे कि गुलाम नबी साहब रिटायर हो गए हैं। एक बात जान लीजिए कि जो सलाहियतें होती हैं ना, रोज़ बरोज़ ये भी ख़त्म होती हैं।
जो सलाहियतें मैं जब मैं डिपार्ट में आया उस वक्त थी, अब नहीं है वो सलाहियतें नहीं है। मैं थोड़ा बहुत इस जिसको तबलीगी जमात के साथ निकलता हूँ, तो एक शख्स की मैंने सलाहियतें देखी, मैं समझा अल्लाह इसको हमारी जमात के साथ लगा दे। मैं उसके पीछे 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 लगा तो वो नहीं निकला, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो वो निकल गया। क्या जब वो निकल गया तो आया, जब भी वो आता था तो कोई ना कोई पंगा खड़ा करता था। जो भी सलाहियत है वो उसमें जवानी में थी, वो सलाहियतें बूढ़े में नहीं थी। जो आप इस वक्त कर सकते मैं नहीं कर सकता, वो सवाल ही नहीं कि वो काम मैं कर सकता हूँ मैं। तो बाकी ये आप कहेंगे कि बस रिटायर हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अगर आप मुझे दिल की बात पूछेंगे ना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इस काम से क्या इस काम से कब मुक्ति मिला। दिल से मैं ये चाहता था। तो आपसे सिर्फ इतनी विनती है मेरी कि जो मेरी ज़बान और आँख, ये दो चीज़ें हैं जिनसे इंसान ज़्यादा गुनाह में मुब्तला होता है। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इतना तो मुझे भरोसा है कि आँख पर तो अल्लाह ताला ने मुझे काबू दे दिया है। तो आँख से मैं कोई अल्लाह ताला ने मुझे उसमें तो, लेकिन ज़बान मेरी चलती है। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मेरी चलती ज़बान से बहुत सारों को कभी कभी तकलीफ़ पहुँची होगी। ये तो मुझे न मालूम कि ज़बान मुझे घर में भी चलती, क्या पता कि इसमें कब मैं अल्लाह ताला मुझे इस पे काबू पा दे, तो उससे दुआ गो हूँ। तो ये इसमें बाकी आपसे यही है कि मेरी तरफ से अगर किसी को कुछ भी है ना, जो अल्लाह के हुकूक वो तो मुझे क्या है वो तो मैं करता हूँ, लेकिन जो हुकूक इबाद है वो कैसे मैं अदा कर सकूँ, वो तो तभी माफ़ हो सकते जब आप मुझे माफ़ करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि बस मुझे माफ़ कर दें, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। आप सब मेरे बच्चे जैसे हैं, है ना, कोई बेटा जैसा है, कोई भाई जैसा है, तो ये बच्चा जैसी है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी दे दी है, तो फिर इसी ज़िंदगी पर आखिरत मुनसिर है। जो इस दुनिया आखिरत कमाने के लिए तो आखिरत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आखिरत कमाने के लिए तो इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आपके काम है तो वो आप करते रहो, तो आखिरत आपकी बन जाएगी। हता कि मेरी बात का आप पर असर तो नहीं होगा है, क्योंकि कीमियाई सादत में लिखा है, इमाम गजाली लिखते हैं कि जो गैर अमल वाले होते हैं उनकी बात का भी असर नहीं होता। तो मैं तो गैर अमल वाला हूँ, मेरी बात का असर क्या होगा आपको। बाकी ये तो दुनिया का दस्तूर है, आना जाना। मुझे कोई भी गिला नहीं है रिटायर होने का, या न कुछ गम है न कुछ, अलबत्ता इंतज़ार है कि कब ये दिन ठीक तरह से निकले। वस्सलाम।